जी 24-year-old Mrs. Sadda, wife of Rehan, known case of epilepsy since 6 years and known chronic hypertensive since 1 year, resident of Kurangi, who is a graduate and is a housewife, married since 2.5 years, virtual primary, having LMP on 28th of October, which makes the expected date of delivery 5th of August 2021, मेरे हाले admit through जितने आ गए हैं इतने काफी होंगे देख लेना a- admitted through Jinnah Hospital 3 days back. Presented सॉरी सर आप वो ना पहली वाली जो क्लास चल रही है उसको आप क्लोज कर दें या तो एक मिनट इमरान इसको अभी जब तक फाइनलाइज नहीं जी होता सर, मैंने कहा है साहब एग्जिट कर रहा है। जी सर, चलो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट सही 24-year-old Mrs. Sarda, wife of Rehan, known epileptic since 6 years and known hypertensive since 1 year, is a resident of Korangi, who is a graduate and is a housewife, married since 2.5 years, virtual primary, having LMP on 28th of October, which makes her expected date of delivery 5th of August 2021, admitted through Jinnah Hospital 3 days back, presented with 35 plus weeks of gestational amenorrhea and raised sugar levels and raised blood pressure since 4 days. According to the patient, this was a planned pregnancy. When she missed her cycles, confirmed the pregnancy by urine PT at hospital, followed by ultrasound, which showed a single alive fetus. No other blood investigations were performed. She took the folic acid supplements, had nausea and vomiting, for which she took some medication from a nearby clinic. There was no history of fever, bleeding, or discharge. Her blood pressure was found to be raised. So she was advised tablet Eldomid 1BD by the nearby clinic, although she was not taking any antihypertensive previously. In the second trimester, felt the fetal movement in the fifth month of pregnancy, took iron and calcium supplements, booked herself in Jinnah Hospital 2 weeks back, took the tetanus toxoid vaccinations. She complained of mild headache. There was no blurring of vision, epigastric pain, or any chest pain, flank pain. There was no swelling in both of the feet. There is no history of hospital administration due to raised blood pressure. Did not get her 24-hour urine test, although she got her other investigations of blood and urine. And her ultimate dose has been increased to 2 QID. She complains of increased thirst and appetite and dryness of her mouth. Her sugar test has been done where sugar levels were found to be high. Initially, the doctor advised her lifestyle modification and to restrict her sugary and bakery stuff, although she had not been advised to take meals 6 times a day initially. Along with the lifestyle modification, she was advised oral hypoglycemic agents twice a day. But as the sugar levels were not controlled, her glucose dose has been increased thrice a day and started insulin 3 times a day, which has been started from the last 3 days in the hospital. She has a glucometer at her home and a cousin checks it and is aware of the normal sugar levels. And according to the patient, after her meals, that is the postprandial levels are high. She injects insulin herself. She's not aware about the signs of the hypoglycemia. There's no complaint of dysuria and any recurrent vaginal discharge. She also complains of easy fatigability after doing the household work. There's no complaint of any chest pain, shortness of breath, or orthopnea. There's no history of bleeding from any of the orifices or any hemoptysis or diarrhea. There's no worm infestations, no pica cravings, or oral ulcers and numbness. She does not walk bare. There's no history of walking barefoot or any high-grade fever. And her diet is mostly composed of green leafy vegetables, chicken. She does not. Her diet is deficient in meat, egg, or milk. Her anomaly scan had been done in the previously, which showed that the water around the baby is less, although the baby had no anomaly.
There's no history of leaking or any bleeding throughout the second trimester or in the first trimester. She is not taking any painkillers like NSAIDs and taking tablet Lares for epilepsy. According to the patient, the baby is growing well according to his gestation. And the scan also showed, the patient told me that the placenta is low lying and there's no history of previous instrumentation or any bleeding episode. She has been advised bed rest and avoid intercourse. Now the gynae history. Her age of menarche is 13 years. Her cycles are regular, these for 4 to 5 days. There's no vaginal discharge. There's no pain during the cycles and never practiced contraception or pap smear performed. Ops history. Married since 2.5 years, is a virtual primary and history of miscarriage 1 year back. She conceived spontaneously after 2 months of marriage, which resulted in a missed miscarriage of 3 months. And she aborted spontaneously at home. There is no history of any instrumentation. And initially, her urine PT was positive, and there was a history of cardiac flicker was also present in the scan. And no product of conception was sent for histopath. During this pregnancy, her blood pressure was found to be raised, so tablet Aldomid 1BD was started by the nearby clinic. Surgical history is not, there's nothing significant in the surgical history. Past medical history now. She has been diagnosed as hypertensive from the last 1 year during the pregnancy and was given tablet Aldomid, but afterward she never used any antihypertensive and is non-compliant. She is known case of epilepsy since 6 years, that is from the age of 17 years, and their history of multiple episodes of fits. She was given some multivitamins, although she is not aware about the exact nature of the medicine previously. And her last fit was 2 years back. And currently, she has been started with tablet Laris 1 OD. There is no history of cardiac, kidney disease, or any Aplar syndrome or thrombophilias. There is no history of joint pain or rashes. Family history. Her father is known diabetic. There is no history of hypertension or any cardiac disease in the family. Drug history. As I've already discussed that she's taking Lares and Aldomid, and she also takes tablet Escart. Personal socio-economic history. She lives in a rented house. There are 2 owners in the family. She is not habitual to pan, gutka, and chania, and her husband works in a garment factory. Now I come to the general physical examination. A young lady of average height and build, sitting comfortably on bed, well-oriented with time and space, and well cooperative. Her height is 152 centimeter and weight is 80 kg, which makes the estimated body mass index of around 30 kilogram per meter square. Pilar is positive. There are no signs of jaundice, clubbing, koilonychia, sacral and pedal edema. Lymph nodes are not palpable. Thyroid is normal, and all her reflexes, like the knee and the ankle jerk reflexes, are normal. Both the breasts are of equal symmetry. Areola is of brown in color and no scar or any pigmentations present. There are no mass is palpable in all the 4 quadrants of the breast, and both the side of the axillary lymph nodes are not palpable. Bilateral equilibrium entry on both the apices of the lungs, and there are no added sounds present. Apex beat is heard in the fifth intercostal space. Now I'll come to the per abdomen examination. On inspection, abdomen is distended, consistent with a gravid uterus. Abdomen is moving equally with respiration. Umbilicus is central and everted. There is no scar mark or any pigmentation present, and hernial orifices are intact. On palpation, the symphysis fundal height is 32 centimeters, lie longitudinal, presented in Paris calf. Liger seems to be adequate according to examination, and fetal heart sounds are audible around 140 beats per minute, and baby's back is felt on the right side, and estimated fetal weight is approximately 2.2 kg. And डॉक्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है. Summarize your case, better. 24-year-old, married since 2.5 years, is a virtual primary, known epileptic since 6 years, and hypertensive since 1 year, and currently 35 weeks pregnant. Presented with raised blood pressure and sugar levels since 4 days.
Currently, she's taking tablet Aldomid 2 QID and Glucofit 3 times a day and insulin 3 times a day and tablet Laris. Pilar is positive. On per abdomen examination, height of under 32 centimeters, Liker seems to be adequate. Presenting part is cephalic, fetal heart sound are positive, and if estimated fetal weight is 2 kg. And there's no edema present, and reflexes are normal. And her blood pressure is 120. Her blood pressure is 120 by 70. Pulse is 80, and she's afebrile. Okay. What is the gestational age? Currently, she's 35 weeks pregnant. 35 plus weeks. 35 plus weeks. Okay. And height of fundus is 32. Okay. You said she was virtually primigravida. What does that mean? She's gravid 2 para 0 plus 1. Last Okay. miscarriage was 1 year back. No, you mentioned a couple of times that she's virtually primigravida. What does virtually primigravida means? Okay, she's gravid 2 para 0 plus 1. She has no alive issues and she has a history of miscarriage 1 year back. She spontaneously aborted. That's why I said virtual. How do you define a virtual primigravida? That she has been got pregnant but she has no alive issues present. Which ended in डॉक्टर मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आ रही उसकी. नहीं आप ही ने बेटा इसमें 2-3 दफा मैं वही सोच रहा था कि ये डेफिनेशन आपने कहाँ पढ़ी है या ये किस जगह आपने have you read this thing of virtual primigravida? डॉक्टर हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो भाई हम लोगों को इस तरह से बताया जाता था कि नो लाइव इशू मिसकैरेज है तो वर्चुअल प्राइमी होगी. अब मुझे एग्जैक्टली डेफिनेशन इसकी बायोलॉजिकल मैंने नहीं पढ़ी हुई. अच्छा अगर आप पढ़ो तो फिर ग्रुप में सबको बता देना कि कहाँ पे है. लेकिन आई डोंट थिंक सो आई हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर. ओके आई डेफिनेटली रीड अबाउट इट. एंड नंबर 2, जब आप ये हिस्ट्री दे रहे होते हैं उसमें आपकी मिसकैरेज का भी बताना बड़ा जरूरी है. I'd rather tell the patient that she is gravida 2 para 0 plus 1 rather than reverse. You don't know कि how many miscarriages she has, पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उनका आउटकम क्या हुआ, कितनी देर की हुई, ताकि उसके हिसाब से आपकी मैनेजमेंट प्लान चेंज होता. सही. So okay, let's start with the investigation. I need the blood group and the RH factor, the complete blood count. डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं? तो आपके पास होगी तो आप ही साथ साथ बताते जाओ. You have the investigation. I don't have the investigation. Doctor, actually, this was my exam case over there. Complete blood count. I need the blood group and the RH factor. It was A positive. Okay. HB, hemoglobin. The recent complete blood count picture. Hemoglobin was 9. Total leukocyte count and platelet, as which were told me, were normal. And the hepatitis B surface antigen and anti-HCV, she was not. They were non-reactive. Okay. Urea and creatinine. डॉक्टर इसकी मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही है, आप बना दें या तो यूरिया एंड क्रेटिनिन एंड SGPT एंड SGOT एंड अल्कलाइन. नॉर्मल लिमिट में थे डॉक्टर, ये मुझे याद नहीं आ रही वैल्यूज बिल्कुल भी. अभी इस पे मेरा इतना लंबा डिस्कशन नहीं गया क्रेटिनिन एंड यूरिया पे. ओके सो लेट्स मूव ऑन. मैं इसको नॉर्मल कंसीडर करती हूँ. SGPT एंड SGOT वो भी नॉर्मल थे. यूरिक एसिड आई वाज नॉट गिवन, तो मैं भी इसको नॉर्मल कंसीडर कर लूं? मैं बता दूंगा. चलें. यूरिक एसिड, then urine DR to see any pus cells, any proteinuria, ketone or glucose urea, and but as I was told it was more than 5 HPF, so I asked for the urine culture. But urine culture there was no bacterial growth present. There was no 24-hour urinary protein investigation done. Protein creatinine ratio was also not done. Urine dipstick
पे बोला था कि +1 आ रहा है पेशेंट को ना, Okay. एंड बीपी चार्टिंग प्रोफाइल वाज नॉट गिवन टू मी। ये मेरी पूरी हाइपरटेंशन की इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं कंप्लीट। देन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज, फास्टिंग ब्लड शुगर्स, OGTT, 24 hours 6 times sugar profile, or ultrasound fetal well-being for a dating scan to see the CRL and the gestational age, anomaly scan to see or any anomalies present for the amount of the liquor, placental localization, and the serial growth scan to see the fetal biometry and estimated fetal weight, amount of liquor in all the 4 quadrants, placental localization and lie. डॉक्टर मेरे सामने उन्होंने कहा था हम डिस्कस करेंगे लेटर, बट मुझे कुछ दिया नहीं था उन्होंने फीटल बायोमेट्रीज भी। देन umbilical artery doppler and middle cerebral artery or the middle cerebral artery doppler, क्योंकि पेशेंट करंटली तो ये 35 वीक्स है, लेकिन मुझे प्रीवियस umbilical artery doppler चाहिए या middle cerebral artery doppler and CTG and biophysical profile। बस, और तो मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay, fine. Okay, let's start by one. Uh, why did you have this oral GTT done in this patient? What is the significance of getting an? Doctor, because fasting blood sugar is just a screening test. For the diagnostic criteria के लिए तो I will go for an OGTT to see all the other sugar levels. Do you think she is not already diagnosed to be diabetic? She was currently in this pregnancy, but I would go for my investigations as well to have my surety. What kind of insurance did you want to know? Is she on any medication on diabetes? Yes, she is taking tablet glucophage, 1 TDS, and tablet and insulin. She's taking 3 times a day. So what is the point She of was, then what is the point of doing OGTT in this case? no, I will not go for any OGT then. But previously अगर उसने कोई कराई हुई है तो फिर मैं नहीं मांगूंगी कि I need to get the OGTT as well. But currently अभी तो मैं OGTT नहीं कराऊंगी इसकी, क्योंकि she is a gestational diabetic already. That is my point. But you said you want to have an OGTT done, and you wanted कि आपने 3 इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, एक ब्लड शुगर फास्टिंग मांगी है, OGTT मांगी है, और आपने 6 pointers 6 times sugar point. वही मैं पूछ रहा हूँ, what was the point of getting an OGTT done in this case? How do you defend that? Because एक तो पेशेंट इंसुलिन ले रही है, तो आई वुड रेदर हैव एन आइडिया ना कि पहले ऐसी ओजीटी में क्या रिजल्ट्स आए हैं, ताकि फिर मैं देख सकूं उसकी। बेटा जब आप एग्जाम में इन्वेस्टिगेशन मांगते हो, those investigation is there and then on that day onwards. ओके, पहले का नहीं रिकॉर्ड मांगेंगे? नहीं, पहले का अगर रिकॉर्ड की आपको जरूरत होगी then of course you'll ask for that record. But अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था किसी के what investigation would you like to do? अब at this stage इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो ओरल जीटीटी आप किस तरह दो। डॉक्टर मैं हाँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन यही बात हो रही है कि मैं फास्टिंग ब्लड शुगर मांगती हूँ एग्जामिनर से, उसके बाद मैं ओजीटी मांगती हूँ तो बोलते हैं आप ओजीटी क्यों मांग रही है जब अपने फास्टिंग ब्लड शुगर मांग लिए। तो मैं इसे डिफेंड करती हूँ कि वो ओजीटी इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फर्दर कंफर्मेशन के लिए। agreed. But in those cases in which diagnosis has not been made, this Okay. is a known case of diabetes जिसमें पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन पे है, उसमें आप क्या डायग्नोस करना चाह रहे हो? Yes, you can look at the 6 pointers. HbA1c Of course, you can do the HbA1c. HbA1c का क्या रोल है इसमें? कि वो बताएगा प्रीवियस 3 मंथ्स का रिकॉर्ड एंड वी कैन एक्सक्लूड आउट वेदर शी इज नोन डायबिटिक। Why are you excluding our known diabetic? She is already a diabetic patient. At उससे this बोला कि इसको पहले नहीं हुई थी, इसको इज द फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुई एंड दो इट वाज नॉट कंट्रोल्ड, तो उसमें इंसुलिन स्टार्ट कर दी। तो शुड आई टेक इट एज अ नोन डायबिटिक? पहले तो कोई इंसुलिन नहीं ले रही थी what डॉक्टर ये। what
आप क्या डायग्नोज क्या करना चाह रहे हो? यू ट्राइंग टू डायग्नोज कि चीज कितने टाइप की डायबिटीज होती है? Doctor, gestation, there are three kind of diabetes. So the gestational diabetes, which is most common in pregnancy, then the type 2 and type 1 diabetes. There are three kind of diabetes present. ओके, आप इसमें क्या डायग्नोज करना चाहते हो? डॉक्टर आप मैं तो इसमें जीडीएम था मेरे दिमाग में, जेस्टेशनल डायबिटीज, बिकॉज प्रीवियसली ये कोई भी इसको कभी शुगर्स नहीं हुई, कभी कोई ग्लूकोफेज नहीं ले रही थी, फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी इसको डायग्नोज हुई थी। आप इन तीनों चीजों को किस तरह डिफरेंशिएट करते हो? Impaired sugar levels encountered first time in the pregnancy is known as gestation diabetes, and established diabetes, a patient who has previously been taking any or hypoglycemic agents or any medications for the control of sugar before the pregnancies. Then I can go for diabetes type 2, and type 1 is from the young teenage age से किसी को शुगर्स होंगी एंड द इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उसको फिर मैं टाइप 1 बोलूंगी क्योंकि वो तो ऑटो इम्यून होता है। एट दिस स्टेज या किस आगे जाके हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज थ्री? आप मुझे किताब बंद कर दो अपनी, बेटा नहीं, मैंने किताब नहीं खोली हुई डॉक्टर, मैंने कोई किताब नहीं खोली हुई। मैं आई डू अंडरस्टैंड, किताब का ये मतलब नहीं कि किताब फिजिकली विजुअली आपने खोल ली, किताब आपके दिमाग में खुलती है। यू थिंक अबाउट दिस डॉक्टर देखिए, अगर आप लिसन टू माय क्वेश्चन प्लीज। आई एम आस्किंग यू हाउ डू, आपने मुझे कहा 3 टाइप की डायबिटीज होती है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, हाउ डू वी differentiate between all these three in this patient? मतलब कि अगर अगर ये जेस्टेशन डायबिटीज होती तो ये ओरल शुगर्स पे या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी ये कंट्रोल्ड होती, लेकिन सिंस पेशेंट की शुगर्स कंट्रोल्ड भी नहीं है और हाइपोग्लाइसेमिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे और ये इंसुलिन पे शिफ्ट हुई है, तो इसीलिए फिर वो मोस्ट प्रॉब्ली ये एस्टैब्लिश डायबिटीज की तरफ जा रही है। मुझे तो यही बात अभी तक समझ में आई है क्योंकि मैं तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज लेके चल रही थी। Okay, so you think she is a case of gestational diabetes? यस। How will we confirm that? अगर वो Is there जेस्टेशनल any डायबिटीज, method to confirm? Is there any way to confirm this thing? डॉक्टर हम लोग HbA1c करा सकते हैं ना, कि अगर अगर आपको कंफर्म Okay, करना है let's कि suppose HbA1c आपका 7 आ गया फिर। तो इधर हायर साइड पे 6.5 तक कट ऑफ होता है, नॉर्मल होता है। अबव 6.5 दैट मींस शी इज गोइंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिश्ड डायबिटीज। अच्छा, और तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है मेरे पास। आगे जाके कभी कर सकते हो? और 6 वीक्स और पोस्टमार्टम में वो तो बाद में हम करेंगे। 6 वीक्स पे जाके हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर्स देखेंगे, और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर रेस्ड आ रही है मोर देन 100 ग्राम पर डेसीलीटर, मोर देन 125, तो फिर हम उसको फास्टिंग फिर हम लोग एस्टैब्लिश डायबिटीज कंफर्म कर देंगे। उससे पहले क्या आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते with उससे this पहले age? हाँ, नहीं, हम लोग एज पर नाइस गाइडलाइंस तो ये कहती है ना 6 वीक्स पोस्टमार्टम पे हम लोग कंफर्म करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स पे। बेटा मेरी बात सुनो, देखो आप why do you confusing yourself? आज तक आपने कितने डायबिटीज के पेशेंट मैनेज किए? डॉक्टर मैंने मल्टीपल पेशेंट्स मैनेज किए हैं। कितने नॉन डायबिटिक के जीटीटी कराए हैं आपने? नोन क्या चीज? ओजीडीटी? हाँ, डॉक्टर गवर्नमेंट सेटअप पे हमारे पास डिप्सी होता था, ओजीडीटी कुछ ही कराए थे मैंने, लेकिन उसके अंदर आता था ओजीडीटी। जो इंसुलिन पे थे उनके आपने ओजीटी कराया, नहीं नहीं, इंसुलिन वालों का मैंने कभी ओजीडीटी नहीं करवाया। तो आप इसका फिर क्यों करा रहे हो? जो ये पेशेंट इंसुलिन पे, क्यों आप अपने आप को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो और मुझे भी कर रहे हो? बात बड़ी सिंपल सी है, यू कीप इट सिंपल। नंबर 1, देयर इज नो टेस्ट एट दिस स्टेज व्हिच कैन डायग्नोज कि जी जेस्टेशनल डायबिटीज है और शी इज अ नॉन डायबिटिक। नंबर जी। 2, उन दोनों की मैनेजमेंट विल नॉट चेंज एट दिस स्टेज। Management will depend upon control of blood sugar levels. उसकी जी। diagnosis is always done postpartumly.
What really happens in a GDM case is कि उसके blood sugar levels they come back to normal after the delivery. जी. जो नॉन डायबिटिक होता है इवन आफ्टर डिलीवरी उसके ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा हाई रहते हैं. दैट इज द वन पॉइंट. नंबर 2, इन सब केसेस के ऊपर अगर उसका नॉर्मल भी हो जाता है आपने उसका जीजीटी कराना है 6 वीक्स पोस्टमार्टम. एंड व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? और द कंफर्मेशन के लिए. किस चीज की कंफर्मेशन के लिए? Whether she's known diabetic or whether she was gestational diabetes. एक. नंबर 2, नंबर 2 और बस कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बस मुझे सिर्फ यही पता था. आप बता दें सर. she will become a diabetic in the next 10 to become diabetic between next 10 to 20 years time. So what is going to happen is that we have to make sure कि after the value of that GGT we need to guide her कि future के लिए आपने अपना काम क्या करना है, आपने अपनी modification किस तरह continue करनी है. 50% रिस्क होता है. She has a tendency to become a diabetic between next 10 to 15 years. इसमें तो agree करते हैं मुझसे? उस चीज को डिले किया जा सकता है कि अगर ये अपना वेट कंट्रोल रखेगी, डाइट कंट्रोल रखेगी, लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन रखेगी तो मे बी वो 15 साल से निकल के आगे 20, 25, 30 साल तक चली जाए एज अ पेशेंट. अगर ये इनिशियली उसके उसी तरह जाके आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स, शुगरी प्रोडक्ट्स खाती रहेगी तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एग्रीवेट करेगा, वो अर्ली डायबिटिक हो जाएगी, अर्ली डायबिटिक बन जाएगी. और नंबर 2, उस स्टेज पे आप उसे बताओगे कि जब अगली प्रेगनेंसी होगी तो देन शी अगेन विल बिकम अ डायबिटिक जीडीएम. उसके लिए फिर आप क्या प्रिकॉशंस पहले क्या लेना है, क्या ले लेना. ठीक है. ठीक, ये तो डायबिटीज का पार्ट हो गया. चलो अब सेकेंडली पार्ट आ जाता है, हम बाकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं. हमारे पास अभी थोड़ा टाइम रह गया उसका. नॉन हाइपरटेंसिव. शी इज अ नॉन हाइपरटेंसिव. नॉन हाइपरटेंसिव में आपने मुझे बताया, चलो यूरिया क्रिएटिनिन वाज नॉर्मल, प्रोटीन यूरिया वाज 1+, और लेट्स सपोज जो यूरिक एसिड है वो 5.5 आ जाता. व्हाट सिग्निफिकेंस डज दैट मीन? वैसे तो 6 तक का होता है यूरिक एसिड, लेकिन बोलते हैं कि अलोन यूरिक एसिड के बेसिस पे आप कोई डिलीवरी प्लान नहीं करते. अलोन यूरिक एसिड की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. यूरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को बता रहा होता है, रीनल नेफ्रोपैथी. Is that the reason why she is having proteinuria then? 5.5 uric acid. जी, प्रोटीन्यूरिया +1 है. डॉक्टर मुझे एक चीज बहुत कंफ्यूजन होती है हमेशा कि +1 जो है, अगर +1 प्रोटीन आ रही है तो मैं 30 ग्राम बोलूंगी उसको, या 300 कितना प्रोटीन आ रहा है, ये मुझे बुक्स में बहुत वेरिएशन हो रही है. बेटा आप जब स्पॉट टेस्ट इज टोटली डिफरेंट. हाउ डू यू कंफर्म कि ये 300 है कि 30 है कि 800 ग्राम्स है? किस तरह करते? डॉक्टर देखो हम लोग डिपस्टिक करवाते हैं और फिर 24 आवर. Dipstick is, what does dipstick tells you? Does it tell you the quantity or does it tell you कि positive या negative है? डॉक्टर वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव बताती है क्योंकि हम Number लोग one. कलर्स. So how do we quantify that फिर? फिर मजीद क्वांटिफिकेशन तो फिर यूरिन डीआर हम लोग करवाते हैं या फिर 24 आवर यूरिन. बेटा यूरिन डीआर के अंदर हाउ डू वी क्वांटिफाई कि उसकी प्रोटीन्स कितनी आ रही है? उसमें भी आपकी जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या लिखा होता है? प्रोटीन 1+, 2+, 3+ लिखा होता है. और क्या लिखा होता है? क्वांटिटी लिखी होती है? नहीं, क्वांटिटी नहीं लिखी होती, सिर्फ +1 +2. तो फिर क्वांटिफाई से किस तरह करेंगे हम? 24 आवर यूरिन प्रोटीन से. मैंने कभी इन्वेस्ट. ओके. अगर आपने उसको क्वांटिफाई करके उसका नंबर लगाना है साथ पे तो फिर आपको उसका 24 आवर प्रोटीन रिकमेंडेड है. ओके. अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो कि जी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन यू गो फॉर डिपस्टिक और स्पॉट टेस्ट. ओके. So how does a uric acid of 5.5 causes protein +1? ये आप ही ने कहा.
जी फिर तो नहीं होगा ना, वो तो होगा 6 से अबव होगा तो उसके बाद आई वाज मिस्टेकन। अगर अबव 6 होता तो फिर मैं बोलती। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था बीच में अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने कहा था कि जी यूरिक एसिड हाई हो तो वो क्या करता है किडनीज को? अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस फर्स्ट चेंज जो आता है, वो अक्यूट ट्यूबुलर ओके। नेक्रोसिस करवा रहा होता है। acute tubular necrosis जो होता है उसमें आपके व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशंस हेल्प्स यू टू फाइंड आउट कि हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, यूरिया एंड क्रिएटिनिन भी तो करवाना होगा ना साथ में। यूरिया क्रिएटिन पर वो तो मैंने कहा नॉर्मल है। नॉर्मल है। व्हाट कुड बी तो द फिर अदर? आई टेक माय वर्ड्स बैक। यू टेक डॉक्टर माय कोई वर्ड्स। कोई अर्ली चेंजेस आ रही हैं, बिकॉज नोन ओके। हाइपोटेंसिव पेशेंट है, तो मे बी कोई अर्ली चेंजेस आ रही हैं, तभी जो है यूरिक एसिड हायर साइड पे है, मतलब बॉर्डर लाइन है। 5 आप बोले 6 है ना, 5 मैंने है तो ये हायर, 5.5 है 5.5। तो ये हायर साइड पे इट इज गोइंग, और +1 is सपोर्ट, तो अर्ली चेंजेस की तरफ है। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिक एसिड? डॉक्टर मैंने जो बुक्स में पढ़ा था वो तो सिर्फ ट्यूबुलर नेक्रोसिस रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है अच्छा। बिकॉज ऑफ द ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से, एंड यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन होगी और लेवल्स ब्लड में बढ़ जाएंगे। व्हाट डज इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? डॉक्टर वो सिर्फ नेफ्रोपैथी को डिनोट शो कर रही है। अच्छा, और नहीं पता, तो इतना ही पढ़ा हुआ है इस बारे में। anything to do with the preeclampsia or anything to do with the baby, anything with the fetus, anything to do with mother? We have to just control the blood pressure नहीं वो for मैं मैनेजमेंट की बात अभी नहीं कर रहा, वी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ। आप कोई भी टेस्ट कराते हो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है? डॉक्टर देखिए, अगर हम लोग किडनी प्रॉब्लम्स को मतलब जैसे कि नहीं करेंगे तो फिर आगे बाद में एआरएफ में भी चली जाएगी ना, लास्ट इन दी एंड जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, जब जीएफआर डिक्रीज होगा तो एंड स्टेज रीनल फेलियर में पहुंच जाएगी पेशेंट, और प्री एक्लैम्सिया। So you think कि जी if we don't do anything then the patient will end up going for renal failure, is या that true? इनिशियली पहले प्री एक्लैम्सिया से स्टार्ट होगा, प्री एक्लैम्सिया होगा, प्री एक्लैम्सिया के बाद जो है जीएफआर लेवल्स डिक्रीज होंगे, जब जीएफआर डिक्रीज होगा और एक यूरिया होगा, और फिर बाद में इन दी एंड एआरएफ भी चली जाएगी, क्योंकि कॉर्निक हाइपरटेंशन तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करवाती है। अच्छा, सीबीसी, सीबीसी में आपकी क्या फाइंडिंग्स थी? सीबीसी में हीमोग्लोबिन वाज 9 और सारे इंडाइसेस नॉर्मल है। So why do you think your hemoglobin is 9? What is the reason कि why? बिकॉज असल में इसका बिकॉज इसकी ना डाइट वाज इनसफिशिएंट इन मीट एंड मिल्क, शी वाज जस्ट टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शी वाज नॉट टेकिंग एनी रेड मीट और मिल्क और एग्स, हर डाइट, मुझे आपको तो यही लगा डाइट डाइट में, इनसफिशिएंट। do you think that is because of diet deficiency? यस, डाइट डेफिशिएंसी में कौन सा एनीमिया होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसको कैसे डायग्नोस करते हैं? तो उसके अंदर हम लोग सारे रेड ब्लड इंडाइसेस देखेंगे और सीरम फेरेटिन लेवल्स कराएंगे। वो आपने जी वो आपने कराए हैं? नहीं, मैंने मिस कर दी है एनीमिया इन्वेस्टिगेशन, सीरम फेरेटिन, रेटिक काउंट, ओके, पैराफिल स्मीयर। आगे लेट्स मूव ऑन क्योंकि अब बेल बज गई। अब आगे अगला पार्ट ऑफ डॉक्टर मैं मैनेजमेंट में प्लान, जी रिस्क फैक्टर्स इतने थे, मैं मिस कर दिया मैंने। मैनेजमेंट पार्ट, अब हाउ विल वी मैनेज दिस? I will counsel the patient that this is a high risk pregnancy having 5 or 6 risk factors. A multidisciplinary team involving a physician, a diabetologist, dietitian, neurologist will be involved. She will be counseled regarding the diet and the fetal-maternal risk and frequent antenatal checkups and scans, and need of hospital admission in case if her blood pressure, sugar levels are not controlled, and also regarding the timing and the mode of delivery and contraception. For hypertension, she would be advised to restrict salt
And for diabetes and anemia, she would restrict it for the sugary and the bakery items and take a diet rich in protein, that is eggs, pulses, and iron containing red meat and green leafy vegetables, dates and milk, and have a meal 6 times a day in small in amount. For anemia, I would start with her Nahin. For hypertension, she would be admitted in the ward, and every 6 hourly her blood pressure would be checked, and weekly complete blood count, urea creatinine, electrolytes, and liver function test would be sent. Urine dipstick would be done every day to see for any sign of preeclampsia. As it can be superimposed preeclampsia हो सकता है chronic hypertension में. Methyl dopa लेकिन dose क्या would आप करते हो तो आपकी इसकी यूरिन डिप्सिक में 2+ आ जाता है प्रोटीन, be जी फिर क्या करें? यूरिन हाँ पे हम लोग उसके साइन एंड सिम्टम्स को मैनेज करेंगे ना कि पेशेंट का एपिगैस्ट्रिक पेन, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन तो पेशेंट नहीं है. में does not have any sign of symptoms. पेशेंट बैठी कंफर्टेबल बैठ. तो डॉक्टर हम उसको बस सर्विलेंस पे रखेंगे, पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखेंगे एंड उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसे ब्लड प्रेशर को, उसको फीटल ब्लड सर्विलेंस प्रेशर जो है वो 140/90 है. तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल, अभी माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर आ रहा है, मतलब नॉर्मल है ये अभी तक, और माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर है, और पेशेंट की कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो देयर इज नो नीड फॉर एनी टर्मिनेशन और टू टेक एनी एक्शन. हम पेशेंट को सीटीजी कराएंगे एंड उसका फीटल किक काउंट चार्ट देंगे एंड आस्क द पेशेंट टू मॉनिटर हर फीटल मूवमेंट्स. सीटीजी एंड क्या इन होती है? केस कोई व्हाट इज सीटीजी? कार्डियोटोपोग्राफिक cardiac it's a record of the graphic representation of the fetal heart sounds. नहीं, दैट इज फाइन, पर आपने पहले तो नहीं करवाई, आप क्यों कराएंगे जब उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया या कम हो डॉक्टर गया? हमें डॉक्टर हमें फीटल सर्विलेंस भी तो करानी है ना, हमें देखने तो है. पहले मैंने अपनी डज इट कम इन्वेस्टिगेशन में इन बोला. डज इट कम इन इन्वेस्टिगेशन? यस, फीटल एस्पेक्ट से फीटल सर्विलेंस में. आपने कीट करवाई थी उसमें? जी डॉक्टर, मैंने सबसे एंड में करवाई थी. मैंने सीटीजी बोला था और बायोफिजिकल प्रोफाइल बोला था, द अच्छा, लास्ट. आपने बोला मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब है कि मैंने तो नहीं सुना. नहीं डॉक्टर, शायद आपको थोड़े मेरी इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी थी तो शायद कुछ मिस कर दिया होगा, लेकिन मेरे पास थी कि पेशेंट का लाइकर भी तो कम है. अच्छा, अब how will we शुगर्स के लिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ शुगर्स, अभी तो ये पेशेंट मिथाइल डोपा पर है ना, तो इसकी मिथाइल डोपा डोज विल बी इंक्रीज टू द मैक्सिमम, हम लोग 2 ग्राम तक जा सकते हैं. बट इफ द ब्लड प्रेशर इज नॉट कंट्रोल, वी विल ऐड टू द टैबलेट लेबेटलॉल, and fetal monitoring will be done by fetal kick count chart and twice daily CTG and ultrasound. Fetal well-being will be done as the patient has been admitted. Now for the control of sugars, along with the lifestyle modification and 6 times the meals per day, once the sugar level, मतलब जब तक ये sugar levels control नहीं होंगे, हम 6 times हम लोग इसकी sugar monitoring करेंगे, and insulin will be given 3 times a day, which has been decided, along with the oral hypoglycemic agents 3 times a day. और जो है हर कैलोरी इंटेक शुड बी कौन सी 180 इंसुलिन टू. होगा? डॉक्टर मैं इसको रेगुलर इंसुलिन पे रखूंगी एंड अलोंग विद एनपीएच, इसके शुगर्स कैलकुलेट How do करके you decide कितनी एनपीएच देनी है, कितनी रेगुलर देनी है? And what is the aim of your blood sugar इसकी level that you want to achieve? देखिए इसका जो है वेट वाज 80 केजी की है ना, तो 60 and 20 40 and 20, इसका मैं रेगुलर इंसुलिन, डॉक्टर मैंने भी कैलकुलेट नहीं की हुई. सेकंड. अच्छा, चलो कितनी होनी चाहिए अंदाज में? जैसे कि अगर इसका वेट 80 केजी है तो हम लोग 60-20 में से डिवाइड करेंगे, तो मॉर्निंग डोज इसका जो उसका होगा, क्या बोलते हैं, एनपीएच का होगा, वो 2/3 से 2/3 एंड 1/3 होती है, 40 यूनिट्स जो है फिर हमारी वो होगी एनपीएच होगी,
और मॉर्निंग में, और रेगुलर इंसुलिन इसकी 10 यूनिट्स होगी। ये भी कितनी इंसुलिन दे रही है? डॉक्टर पेशेंट ने मुझे बताया नहीं था कि वो उससे कितनी कितनी यूनिट्स दे रही थी। वो पेशेंट तो खुद इंसुलिन नहीं लगाती। लगाती है लेकिन उसको भी एग्जैक्टली याद नहीं था। हाउ इज इट पॉसिबल कि जी फिर अपनी मर्जी से लगाती? उसका था कि जो डॉक्टर ने बताया हुआ है उस लिहाज से जो लिखी हुई है मैं उस लिहाज से लगा रही हूँ। उसको एग्जैक्टली याद नहीं था, वो दिन में 3 दफा लगा रही थी। और मुझे उसको ये ये जरूर याद था कि मैं शी इज अ ग्रेजुएट या शी इज अ ग्रेजुएट। और उसको आपका ये तो ख्याल पता है कि मैं नॉर्मल शुगर लेवल्स। 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट्स का नहीं पता होगा। डॉक्टर वैसे तो अकॉर्डिंग टू वेट तो उसका 10 to 12 यूनिट्स वो रेगुलर I'm इंसुलिन asking ट्राइस you how long she's been on insulin? फॉर लास्ट 3 days। Okay, last for 3 days. Okay, last 3 days में इंसुलिन वो खुद लगा रही है, ब्लड शुगर लेवल उसका इंसुलिन रिलेटिव उसका चेक कर रहा है। इज दैट सो? जी जी हाँ जी ऐसे ही है ना बेटा? जी डॉक्टर। 3 दिनों में क्या इंसुलिन बढ़ी है, कम हुई है, उतनी रही है, उसकी डोज अकॉर्डिंग टू ठीक होगी है, नहीं ठीक हुई? लेकिन उससे क्या कहा था कि जब से इंसुलिन लगाना शुरू किया है तो उसकी शुगर्स अभी कंट्रोल्ड है। विदाउट इंसुलिन शुगर्स कंट्रोल नहीं थी, व्हाट डू यू मीन इसीलिए अभी रिसेंटली डॉक्टर ने ऐड की है इंसुलिन। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड? हाउ डू यू डिफाइन अ कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स? That her fasting blood sugar levels and sugars after the meal, the postprandial levels are in the normal range. That is, What कि less fasting blood sugar should be around less than 100 grams, 100 grams, or 100 milligram deciliter, and postprandial should be 140, less than 140 milligram per deciliter in normal limits. ओके, एक सेकंड सर। ओके चलो, लेट्स मूविंग ऑन टू द मैनेजमेंट पार्ट। अब उसका हाँ, मैंने इस तरह कहा कि 2 प्लस प्रोटीन नहीं हो गया, व्हाट डू डू? Doctor, we will admit the patient and we'll perform her sugar. लेकिन एडमिटेड पेशेंट वाज सेंट Admitted होम। patient say admitted patient है ये. So we will check her blood pressure 4 times a day every 6 hourly, and will increase the dose of a medication if our blood pressure is controlled on 140/90 on the maximum dose of methyl dopa. And so if the blood pressure is not controlled on this medication or methyl dopa, then we will move on to labetalol. Labetalol, and every day her urine dipstick will be performed to see for the proteins, and urine dia will be performed. And if the patient is not giving any sign and symptoms of preeclampsia, that is, she has no headache or no blurring of vision or epigastric pain, and there's no deterioration in her other lab parameters, like LFTs में या फिर कोई और प्लेटलेट्स में कोई डिटोरिएशंस नहीं है, तो फिर we can carry on the pregnancy. But in case if the patient shows any signs of deteriorations, in any hemolysis is there or any symptoms have been increased, so I will terminate the What patient kind after. of what kind of hemolysis would you are you thinking of in this case? Doctor, like health syndrome, अगर डिटोरिएशन हुई और हेल्थ में गया, या लिवर एंजाइम लो प्लेटलेट्स, तो फिर और एलडीएच भी कराएंगे तो उसमें हेमोलिसिस आ रहा है, तो फिर वी हैव टू You डेफिनेटली think टर्मिनेट this द patient is पेशेंट. going to help? नो, अभी तो 140/90 और +2 प्रोटीन यूरिया, लेकिन इफ द पेशेंट डिटोरिएट्स, उसकी सिचुएशन डिटोरिएट हुई तो फिर हम उसको टर्मिनेट Okay, करेंगे next stage फौरन. का 3 प्लस हो जाता है प्रोटीन। हम्म. नेक्स्ट स्टेज का 3 प्लस हो जाता है प्रोटीन। So then I will give her magnesium sulfate
Okay. Why मैग्नीशियम are we सल्फेट। giving a magnesium sulfate for what? डॉक्टर, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है इस पेशेंट का या नहीं हुआ? Blood pressure 140/90 पे. नहीं डॉक्टर, फिर मैं इसको नहीं दूंगी। आई विल नॉट गिव फॉर 140/90 की Why ब्लड do प्रेशर you, है। what is the indication for giving magnesium sulfate? If the blood pressure is more than 160/120, imminent eclampsia। मैंने ब्लड प्रेशर कितना बताया है आपको? आपने 140/90 बताया ना, हाँ जी. तो अगर 160/120 का ब्लड प्रेशर है, साथ में उसको हेडेक, Why are you हियरिंग। assuming blood pressure 160/120? मैं आपको कह रहा हूँ उसका blood pressure 140/90 है. Why are you taking up to 160/120? जी फिर क्या नहीं, करोगे? मैं आप अगर 140/90 है तो फिर मैं ऐसे पेशेंट को जो है ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज कर साथ साथ मैं इसको डिसाइड करूंगी फॉर द टर्मिनेशन कि +3 प्रोटीन्यूरिया आ गया है। आई विल टर्मिनेट द पेशेंट आफ्टर गिविंग द डेक्सा कवर। Okay. How will you give a Dexa? I will give her 12 milligram dexamethasone every 12 hourly. Although we should give betamethasone, but since the betamethasone is not available, so now suppose we give her 12 milligram dexamethasone, and then in the next 12 hours we give the second dose. अच्छा फिर what will और happen with Dexa? क्या होगा? डेक्सा जो है वो लंग्स की मेच्योरेशन कराती है फॉर Okay. द न्यू, ताकि ऑलरेडी थोड़ी अभी ये 35 वीक्स है, तो वो जो है बच्चे की लंग की मेच्योरेशन है, सर्फैक्टेंट के लिए जो है हम लोग डेक्सा देंगे। अच्छा. पेशेंट डायबिटिक भी है, तो फिर हमें फिर शुगर्स मतलब उससे शुगर्स बढ़ गई तो हमें फिर इंसुलिन की डोज भी बढ़ानी पड़ेगी ऐसे पेशेंट में बाय 2 यूनिट्स। By 2 years. अच्छा. और वंस उसके बाद एज प्लस प्रोटीन्यूरिया आ गया है पेशेंट को, पेशेंट को तो फिर पड़ जाता है. पेशेंट को फिर पड़ गया तो फिर मैं इसको मैग्नीशियम सल्फेट दूंगी 14 ग्राम का। दैट इज हम्म. 4 ग्राम हम लोग आईवी स्टार्ट देंगे, एंड 5 ग्राम बटक्स जो है हम लोग और बटक्स दोनों राइट एंड साइड लेफ्ट साइड बटक्स पे लगा देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट का डोज देके we will terminate the patient by cesarean section after taking the high risk consent. और डॉक्टर आवाज स्किप हो गई एकदम जी। I'm asking you during हेलो, this. Can you hear me now? yes doctor, I can hear now. Okay. During the FETI, you will rush her to the theater and do the C-section. Yes. What could be the अगर possible cause? नहीं पॉसिबल कॉज ऑफ रेज फिट। डॉक्टर देखिए, अगर मैंने उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया और पेशेंट वहीं स्टेबलाइज हो गई तो फिर मैं उसको थोड़ा वेट कर लूंगी, लेकिन अगर फिर बार बार पेशेंट फिट थ्रो करी जा रही है एंड इट्स नॉट बीन कंट्रोल्ड, तो फिर आई हैव टू रश द पेशेंट फॉर द सिजेरियन What सेक्शन। could be the possible cause of it? द रेज ब्लड प्रेशर और प्रीक्लैम्पशिया, बट Anything दिस इज else? सिंपली क्रॉनिक हाइपरटेंशन। नहीं डॉक्टर, और मुझे नहीं पता। और नहीं पता. चलो let's stop here now. अब मुझे बताओ आपका वाइवा कैसा हुआ? आपके साथ काफी जाहिर है. टफ था। अब दूसरे वाले का तो रिजल्ट हमें पता. हम तो भी डॉक्टर काफी टफ था, बहुत डॉज आपने किए मुझे। मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछे. नहीं बहुत सिंपल होते हैं डॉक्टर, वो एक हमारा ही अपना परसेप्शन होता है, हमें जो है कॉमन चीजों को हम लोग उलझा देते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है। बहुत आपने कॉमन चीजें पूछी हैं जो हमारी प्रैक्टिस में होती हैं, बट बैक टू बैक सवाल Why were you not? Why do you think you were not able to answer? राइट नाउ। अभी इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ जल्दी कुछ चीजों में मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई, मैं बिला वजह अपने आप को उलझाई जा रही थी। कौन उलझाता है? एग्जामिनर उलझाता है कि कैंडिडेट उलझाता है अपने आप? कैंडिडेट हिमसेल्फ, खुद। कैंडिडेट हिमसेल्फ. अगर आप बैठ के अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, व्हाट डू यू सीरियसली थिंक वेंट रॉन्ग?
क्या चीज? सॉरी, आवाज नहीं। If you reflect on yourself, हम्म, what do you think seriously went wrong? क्या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जो अनरीजनेबल था, या मैं जान के पूछ रहा था, या आपका ख्याल था कि नहीं, आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक वार्ड में। देयर वाज नथिंग अनयूजुअल ओवर हियर। ओके, मुझे ये बताओ एग्जाम में वो आपको क्या असेस क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू सी के एक पेशेंट है डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स के साथ, आप कैसे उसी टाइम मैनेज करोगे पेशेंट को। वो तो डिफरेंट सिनेरियोज आपको चेंज करके देते हैं ना, तो वो देखते हैं कि अगर पेशेंट ये सिम्टम होगा, अब हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, हाउ वुड यू टेक द पेशेंट अकॉर्डिंगली। बेटा रिफ्लेक्सेस देखते हैं। वो आपका एग्जामिनर सिर्फ एक चीज देता है। हमारा एफसीपीएस का जो एग्जाम है, इट इज एन एग्जिट एग्जाम। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जिट एग्जाम इज? यस डॉक्टर, आफ्टरवर्ड देयर इज नो एग्जाम। आफ्टरवर्ड्स यू बिकम अ कंसल्टेंट, एंड अ कंसल्टेंट इज अ कंसल्टेंट। एग्जैक्टली। वो आपको असेस करके देखते हैं कि क्या आपका इतना कैलिबर है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप क्या उसे अकेले मैनेज कर लोगे कि नहीं करोगे। जी डॉक्टर। मैं अ, मशवरा आपको दे देता हूँ, दैट टोटली द सीन इज ऑल योर्स। मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। पता नहीं, आई डोंट नो आपको कभी किसी ने ये बात बताई हो कि नहीं बताई हो। और व्हाट इज हैपनिंग दैट जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो तो यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज कि यू डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। यू डोंट नो कि किस टाइम पे क्या चीज करना है। व्हाट यू जी। टोटली लॉस्ट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, कि उसको आपने इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। डायबिटीज यस की डॉक्टर। बात आई, आपने आंखें बंद की और डायबिटीज का चैप्टर खोल लिया और उसमें जितनी इन्वेस्टिगेशंस थी आपने वन टू ऑल सारी बोल दी। ब्लड प्रेशर जी की बात डॉक्टर। आई तो आपने ब्लड प्रेशर का चैप्टर खोल लिया और उसकी वन टू ऑल सारी दवाइयां अपनी सारी करके बता दी। हमने मैनेजमेंट स्टार्ट की, आपने तो उससे अल्ट्रासाउंड ही नहीं मांगा। एक आई का पेशेंट है जिसकी फंड लाइफ 32 वीक्स आ रही है, बाय डेट 35 वीक्स और सो, उसका तो बात ही नहीं हमारी हुई कि हम उसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। डॉक्टर मैंने तो आपसे मांगा था अल्ट्रासाउंड बेटा, डॉक्टर, और ultrasound is always told in the second half of the viva. It is never ever told that at the time of the management plan. और अगर मैंने आपसे ओके। कहा कि जी हाँ जी आप मैनेजमेंट बताओ, तो आप मैनेजमेंट से पहले आपका सवाल होना चाहिए था कि सर काइंडली मुझे इसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताएं जो अवेलेबल है या जो अभी रिसेंट है। मैंने नहीं बताया। जब मैं मैनेजमेंट में जा रहा था तो कहती थी अच्छा मैं फिर अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। ओके। हम तो अच्छा, हम फांसी सब। गए 1+। जी, हम प्लस सॉरी वन पे ही आप कुछ, थे। हम तो उसी पे घूमते रह गए 140/90+1 पे यूरेनियम। और अगर उसको फिट भी पड़ गया है इस पेशेंट में, और क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर और दूसरी प्रॉब्लम तो ये ना, ये आईजीआर पे भी है। कॉर्निक हाइपरटेंशन और आईजीआर है। आईजीआर है, और लाइकर भी लो है। और प्लस प्लेसेंटा प्रीविया है पेशेंट को। तो हमें तो थर्टी शाबाश। सेवन वीक्स पे और तो पेशेंट को टर्मिनेट तो करना ही है, हम प्लान सिजेरियन सेक्शन तो मैं करना है वहां इसके पे नहीं, पेशेंट। बेटा मैं, और क्या प्रॉब्लम है? एपिलेप्टिक है। तो जो फिट है वो एपिलेप्टिक नहीं पढ़ सकता, उसे जरूर से प्री क्लैम्शिया का या क्लैम्शिया का सॉरी पढ़ना, ब्लड प्रेशर फिट पढ़ना। क्या आपने उसकी मेडिकेशन देखी? क्या आपने उसकी मेडिकेशन रीएडजस्ट की? क्या यू मेक श्योर कि शी कंटिन्यू दोस मेडिकेशन? हो सकता है जब 3 दिन से आपके पास एडमिट हुई है उसने एपिलेप्सी की दवाई नहीं खाई। Who has to make sure कि she is taking the these medication? आई हैव टू। You have to do यार। आपने डायबिटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व कर लिया आपने, और क्या क्या इन्वॉल्व किया था पता नहीं, कुछ 6-7 लोग। डॉक्टर डाइटिशियन ने फिजिशियन को इन्वॉल्व किया था, डायबिटोलॉजिस्ट, डाइटिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। इन न्यूरोलॉजी, इन सब से क्या ओपिनियन लेना चाह रहे थे आप? कि डायबिटोलॉजिस्ट फॉर द शुगर्स के लिए, और फिजिशियन के इनकेस अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम फिजिशियन को करेंगे, और न्यूरोलॉजिस्ट को कि एपिलेप्सी की ड्रग्स जो ये ले रही है वो मतलब सही है, या मजीद हमें इसकी बढ़ाने की देखो, जरूरत है, या कोई ऐड करने की नीड तो नहीं है। एक बात मेरी याद रखो, एग्जाम के अंदर दो एस्पेक्ट सिर्फ है। नंबर 1, ऑब्स्टेट्रिकल केस वो देखते हैं कि आप लेबर रूम में मैनेजमेंट किस तरह करते हो उसकी।
और आप इमेजिन करो कि ये पेशेंट आपके पास आ गया, आप लेबर रूम में हो, कोई छुट्टियां हुई हैं, कोई आपके साथ सीनियर नहीं है, आपने ही मैनेज करना। योर मैनेजमेंट विल बिकम वेरी सिंपल। गायनी का केस है कि आप आउटडोर में बैठे हो, ये पेशेंट आ गया तो मैंने इसकी मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तो वो किस तरह करना चाहिए। 90% केसेस वो हो जाएंगे। आप आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ 90% प्लस पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं ना, जी। तो देन वी आर डूइंग समथिंग राइट, वी आर नॉट डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। लेकिन इसके वायवे के बाद अगर आप डायबिटिक पेशेंट को जीटीटी के लिए उसको 75 ग्राम्स का शुगर पिला देते हो, तो उसकी तो शुगर कहाँ से कहाँ चली जाएगी फॉर डायग्नोसिस फॉर विच शी इज ऑलरेडी बीन डायग्नोस्ड। डॉक्टर मेरा ना ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने कहीं और भी प्रेजेंट किया तो कहने लगी कि आप ओजीटीटी क्यों करवा रही हैं। मैंने कहा डॉक्टर मैं आपसे पहले का पूछ रही हूँ, मैं अभी नहीं करवाना मुझे। देन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब आपसे इन्वेस्टिगेशन मांगी जाती हैं, आप उसमें बोलो कि जी प्रीवियस उसका रिकॉर्ड, उसका मुझे हिस्ट्री दी है कि उसका जीटीडी हुआ है, वो कितना आया था, क्या आया था। ओके, ये ऐसे बोलूंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, या आप हर अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ उसका टाइम बोल दो कि जी कर ली है काम की, पिछला रिकॉर्ड में ये रिव्यू कर लूंगी, पिछला मैं उसका स्कैन देखना चाहता हूं, आपको देख ओके क्योंकि शी इज अ बुक केस, ताकि उससे आप रिव्यू करते हैं कि जी कि अगर इसकी पंडलाइट 32 वीक्स है और बाय डेट 35 वीक्स आ रही है, तो इसकी क्या वजह है, क्या शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स, क्या इसको आईयूजीआर है, सिमेट्रिकल आईयूजीआर है, क्या मसला है, क्या वो सारा चीजें आपको रिव्यू करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पेशेंट के अंदर बहुत सारे मसले थे, लेकिन जिसमें ज्यादा मसले हों उसमें भी इम्तिहान पास करना ज्यादा आसान हो जा रहा है, क्योंकि यू टेक देम वन बाय वन, और उसमें आपका वायु में भी वो उसको सबको टच करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज डन। इसमें अगर मुझसे आप डालोगे इसी के अंदर कि जिसके प्रॉब्लम्स क्या है, शी इज एन हाइपरटेंसिव, शी इज अ डायबिटिक, शी इज एन एपिलेप्टिक ऑन ड्रग्स, और शी हैज एन आईयूजीआर एट द मोमेंट। आईयूजीआर की मैनेजमेंट आपने करनी है, और साथ अपना मेक श्योर कि शी अगर ये शी इज अ नोन केस ऑफ, अगर इसका +1 +2 प्रोटीन आ रही है, तो दैट मीन्स की प्री क्लेम्शिया में तो चलेगी। अब प्री क्लेम्शिया में चलेगी, उसके बाद आपने रिव्यू करना है कि व्हेन टू डिलीवर है। व्हेन टू डिलीवर करने के बड़े सिंपल से उसके उन्होंने बताया हुआ है कि जी ये पैरामीटर्स रहेंगे जो हम डेली करेंगे, ये हम उसके बाई वीकली करेंगे, ये इसका हम फोर्टनाइटली करेंगे। अगर पैरामीटर सारे नॉर्मल रेंज में आते हैं, बेबी की ग्रोथ हो रही है, तो विल कंटिन्यू विद दैट। नहीं होगा तो डिपेंडिंग अपॉन योर न्यूनेटल सर्विसेज हम उसको डिलीवर कर देंगे। अगर हमारे पास न्यूनेटल सर्विसेज सुन लो मेरी बात, अगर हमारे पास न्यूनेटल सर्विसेज ऐसी नहीं है कि ऐसा बेबी सर्वाइव करेगा, देन ऑफ कोर्स इन यूट्रो ट्रांसफर की बात भी आप वहां जाके अगर पेशेंट स्टेबलाइज होगा तो करोगे। यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपनी पिछली सारी एपिलेप्टिक ड्रग्स थी वो सारा कुछ और उसके सारे सिम्टम्स आपको पता हो, ताकि अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मैनेज द मसल्स जब जरूरत पड़ेगी। यू कीप इट सिंपल, you don't open the book and start writing everything which is on the book. Examiner doesn't want that. They want like to see you कि आप कितने organized हो, कितने practical हो, और जो रिपोर्ट आ रही है आगे कैसे चलोगे। एग्जाम के अंदर आपका 90% चांसेस हैं कि पेशेंट जो है वो एनीमिक निकलेगा, लेट्स सपोज, एंड हाउ कैन यू डू दैट कि जो एनीमिया वाला पेशेंट आ रहा है आपने उसका कोई वर्कअप ही नहीं किया है, क्योंकि आप हाइपरटेंशन डायबिटीज में फंस गए, और एनीमिया को आप टोटली आपने स्कैन कर दिया। आपने ना इसको करने के लिए कहा कि जी कि मैं इसको कुछ आयरन लगाना चाहते हो, अगर आपने डेट करना है, आपने इसको ओरल देना है, आपने इसको आईवी देना है, या आपने इसको ब्लड लगाना है। तीन ही चीजें होती है ना, चौथी चीज तो मुझे नहीं पता क्या होती। बस यही देना होता है सर। डॉक्टर मैं असल में आपने मुझे बोला था ना मजीद और आई क्या करना है, मैं नहीं पहुंच ही नहीं सके अभी एनीमिया पे। हमने तो वही जाके घूम घुमा के आपको अभी भी आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट फॉर यू टू पास द एग्जामिनेशन। किताबें करो बंद, गाइडलाइंस करो बंद, सिर्फ जाके प्रैक्टिकली पेशेंट को देखो, और उसकी जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको वहां बैठ के किसी से डिस्कस करके पास करोगे। इफ यू गो बैक टू योर बुक्स अगेन एंड अगेन, बेटा योर चांसेस टू पास अगेन एग्जाम बड़ा मुश्किल हो जाए। You need to be very you need to organize yourself with the problems जो आपकी आ रही हैं,
उनकी मैनेजमेंट प्लान आपके ज़हन में फिंगर टिप्स में होने चाहिए। 20 से ज़्यादा हमारे सिनारियोज नहीं बनते ऑनेस्टली। अगर आप लिस्ट भी कर लोगे ना, 20 गायनी के बनेंगे, 20 ऑफ के बन जाएंगे। उनको लिखो एक एक को, यू हैव टू मेक श्योर सिट डाउन विद समबडी एंड डिस्कस। वो डिस्कशन आपके सीनियर से भी हो सकती है, आपके जूनियर के लिए हो सकती है, आपके कुलीग के साथ भी हो सकती है। आप उनको सामने उठा के मेरी इस चीज से आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने टाइम मैनेजमेंट इससे की कितनी की थी, क्या नहीं की थी, वो पार्ट भी आपने देखना है। नंबर 2 पार्ट आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को उसको करना है, और ये जनरलाइजेशन नहीं करनी। You have to make sure that whatever you're going to say about the patient which you're dealing with. You're not going to talk about the general whole diabetes. You're not going to talk about the uh, anemia. You're not going to talk about preeclampsia. You're not going to talk about epilepsy. You're going to talk about this specific patient जिसकी gestational age में है और आगे आपने क्या करना है। आपने पूरी हिस्ट्री सुना दी, उसमें gestational age का जिक्र ही नहीं किया। डॉक्टर ही 35 वीक्स प्रेग्नेंट थी ना gestation एज। वो मैंने पूछा आपसे, मैंने शायद नहीं सिग्नल से प्रॉब्लम किया। होगा। अच्छा शायद मे And बी आप do remember, Dr. Sabah, do remember, ओके it डॉक्टर। is the duty of the candidate उसने information pass on करनी है to the examiner. Examiner वहाँ मेरी उम्र के बैठ के सो रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, फोन पे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, पर it is the candidate duty to make sure कि जी वो उनको अंडरस्टैंड करें या उनका पॉइंट ऑफ व्यू चले जाए। अगर एग्जामिनर आपकी बात नहीं सुन रहा, आपस में बात कर रहा है, व्हाट शुड यू डू? कि आप एग्जामिनर को कहोगे मैडम मेरी बात सुने, मेरा तो ध्यान हो रहा है, टाइम से जा रहा है, वुड यू से दैट? जी, व्हाट वुड यू से? नहीं डॉक्टर, हम लोगों को अपना वो जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा। डॉक्टर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, लेकिन हम ज्यादा बहस तो नहीं कर सकते ना, ये तो हमारे नहीं एथिक्स कर होते हैं, सकते, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे? अगर लेट्स सपोज एक एग्जामिनर फोन सुनने के लिए बाहर चला जाता है, दूसरा बैठा हुआ है, आप क्या करोगे? जब बाद में एग्जामिनर आएगा तो फिर से उसको बता दूंगी कि करंटली इसकी ये नो, gestation इसकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं इसके तरीके बता देता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा। अगर एक एग्जामिनर उठ के फॉर एनी रीजन जाता है, यू विल आस्क द अदर एग्जामिनर, मैडम सर शुड आई कंटिन्यू और शुड आई वेट फॉर द मैडम टू कम बैक? वो खुद बता दें। ओके अगर दो एग्जामिनर्स आपस में बात कर रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे, फिर आप क्या करोगे? आप चुप कर जाओगे 3 4 5 सेकंड के लिए। जब आप चुप कर जाओगे, वो पेशेंट जो दोनों एग्जामिनर्स हैं वो खुद ही बहुत आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। These सही। are ways to make sure कि आपकी टेंशन है। नंबर 3, अगर आप हिस्ट्री को सामने अपने मुंह के सामने से आके पढ़ना शुरू हो जाओगे और एग्जामिनर से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करोगे, वो 10 सेकंड के अंदर बोर हो जाएंगे और सोचना शुरू कर देंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप हिस्ट्री के साथ साथ जो भी बोल रहे हो, एग्जामिनर को अपने आई टू आई कांटेक्ट करके उनको इंडल्ज रखो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ जी मेरी तरफ, जो आपकी तरफ गौर से देखना होता है आप भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हो। अगर आप मुझे कागज पे पढ़ के इसकी डिटेल पढ़ना शुरू हो जाओगे, वो 3 सेकंड के बाद उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर देनी। आज किया, महीने डॉक्टर हम किया, थोड़ा सा तो देख महीने ये सकते क्या हैं ना, किया। नहीं, थोड़ा सा हम देख सकते देखो हैं ना, बिल्कुल देख सकते हो। तो बट नहीं, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बानी बताओगे आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ज़बानी बताओगे, यू विल डू दैट, लेकिन आप उसको जायजा, लेकिन ये भी नहीं कि सिर्फ पेपर की तरह देखते रहो। जी आपने आपने गेन करनी है, उन्होंने आपकी गेन करनी। ओके। हेलो ये भी आपने बात समझ आई कि नहीं आई? जी डॉक्टर, मुझे समझ में आ गई बात। डॉक्टर मुझे एक और प्रॉब्लम थी, देखिए ये 1 ईयर से हाइपरटेंसिव है, तो क्या मैं इसकी फंडोस्कोपी, ईसीजी और इको मांगूंगी? अच्छा, अब दैट कम्स डाउन टू द फंडोस्कोपी करने के लिए नॉर्मली देखो, उसको जस्ट देखो, एग्जाम में कोई चीज गलत या सही नहीं होती। आवाज कट रही है। हेलो। ओह नो।
सर का आई थिंक इंटरनेट जी डिस्कनेक्ट जी सर चले गए। सर वापस रिकनेक्ट होंगे ना? आईडिया नहीं, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो। हेलो जी डॉक्टर। हाँ अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी का जस्टिफिकेशन क्या दोगे? डॉक्टर के वही क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से आपकी कितने अरसे के बाद क्रॉनिक हाइपरटेंशन के बाद इफेक्ट होता है ऑन द फंडोस्कोपी? डॉक्टर जो किताबी बातें हैं वो तो ये 5 इयर्स के बाद जो है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगी तो इसी पे आप फंडोस्कोपी कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, इको कराएंगे देखो, आफ्टर 5 इयर्स। you coming back again on the book, how will you justify practically कि मैं इसकी फंडोस्कोपी क्यों करना चाहता हूँ? डॉक्टर उसी विजन चेक करेंगे कि इसको नजर सही आ रहा है, मुझसे पूछेंगे वेदर यू कैन सी क्लियरली और नॉट। फंडोस्कोपी में विजन देखते हैं, डू वी सी विजन ऑन फंडोस्कोपी? नहीं वो तो रेटिना रेटिना और उसकी वो देखेंगे। हाँ, तो फिर उसमें फंडोस्कोपी मतलब उसमें विजन कहाँ से आ गया? डॉक्टर और मुझे विजन एग्जामिनर ने देखने बोला आपने फंडोस्कोपी नहीं मांगी, ईसीजी नहीं मांगी, इको नहीं। मैंने कहा डॉक्टर ये 1 इयर्स का हाइपरटेंसिव है, इतनी ज्यादा क्रॉनिक चेंजेस तो नहीं होंगी और ये मेरा डोमेन लाइक मैंने ऐसे बोला तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए, ऑलरेडी पेशेंट तो ना कोई ब्लरिंग ऑफ विजन कुछ भी नहीं था, अच्छा अच्छा, एनक पेनिंग ब्लरिंग। थी। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। फंडोस्कोपी, हम्म, ईसीजी मांगने का उसकी जस्टिफिकेशन बड़ी सिंपल है कि जी यस, शी इज ओनली बीन नोन टू बी हाइपरटेंसिव सिंस 1 ईयर, बट वी डोंट नो कि अंडरलाइन हम्म, हाइपरटेंशन कब से चल रही है उसकी। डायग्नोज तो अब हुआ है ना, साल हम्म, पहले। जी यू गेटिंग माई पॉइंट? मे बी या ये पिछले 5 साल से 10 साल से हाइपरटेंसिव वो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता। जी हाँ, आप तो ये मैडम से ये है जस्टिफिकेशन कि दे। आप कह दो कि जी वी डोंट नो कि शी इज नॉट बीन रेगुलरली मेडिकली चेक्ड, एंड वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग शी हैज बीन बिफोर द डायबिटिक, और हमारी मैनेजमेंट उसके हिसाब से जिससे हम कर सकते हैं, इसलिए वी विल डू द ईसीजी, एंड इसलिए दैट इज द रीजन वी वांट टू डू दैट। ईसीजी डिफेंड करना थोड़ा सा और मुश्किल है क्योंकि उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोई सिम्टम्स होते हैं तो इट मेक्स योर लाइफ जी इजियर। अगर नहीं है तो कोई एग्जैक्टली। ज्यादा जरूरी नहीं है करने की। पर फंडोस्कोपी यस, उसको जस्टिफिकेशन आप करना आसान है कि उसमें आप ये जरूर कह सकते हो कि नॉर्मली हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड किसी का नहीं है, एंड वी डोंट नो हाउ हाउ लॉन्ग शी इज बीन, एंड वी डू नो कि इतने सालों के बाद ये रेटिनोपैथी के चेंजेस आते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए मैं ये करूँ, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आके मतलब आपने आप उसकी आगे सही है नहीं समझते मतलब मेरे। मैं ये बोलूं कि हमें नहीं नहीं समझ आया सर, पता नहीं कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट में था 5 इयर्स, ओनली 5 इयर्स ज्यादा होगा, मेरी लेकिन बात हम ये बोलें कि हमारी जो सुनो, मेरी बात सुनो, हाउ डू वी नो दिस पेशेंट was not a hypertension 2 years back or 3 years back or 5 years back? तो कभी से या चेक। एक ऐसा पेशेंट हो जो हर 2-3 महीने के बाद अपना रूटीन का मेडिकल रिकॉर्ड जाके चेक कराए और फिर वो ठीक हो तो बंदा समझता है। अगर जी डॉक्टर। आप या मैं खुदा ना खास्ता डायबिटिक डायग्नोज हो जाते हैं, हाउ डू वी नो कि हमें डायबिटीज कब से? इज देयर हाँ एनी मतलब पैरामीटर व्हिच कैन टेल यू? वो तो सिर्फ हाँ, HbA1c मैंने बताएगा ना। एचपी1सी तो सिर्फ 3 महीने का बताएगा, तो पहले का एचबीएनसी ये रिकॉर्ड थे। पिछले 2 साल का तो नहीं बताएगा ना। नहीं फिर वो साइन एंड सिम्टम्स का पूछेंगे ना कि आपको कोई रात नॉक्ट्यूरिया वो सॉरी पॉलीयूरिया तो नहीं हो रहा, सिम्टम्स से पूछना शुरू करेंगे यही किसी। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नॉट नेसेसरली सबको सारे सिम्टम्स होते हैं। आई हैव जी सीन पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर इवन प्रेगनेंसी के अंदर 120 सिस्टोलिक भी हो, वो ठीक ठाक बैठे होते हैं, जी उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू जी ट्राई टू मैंने भी कीप क्रॉनिक हाइपरटेंसिव इट। पेशेंट देखी थी। सॉरी। डॉक्टर मैंने भी क्रॉनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट देखी थी, 160/110 का बीपी था, उसको कोई हेडेक ब्लरिंग कुछ भी नहीं थी। हाँ, तो यही तो बातें होता हैं ना, है। इसलिए
यही प्रैक्टिकली आप जब वहां जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि जी जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स और डिजीज आपस में जरूर कोरिलेट करें। इसीलिए हम हाँ वी नो के साथ से वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, लेकिन वी डोंट नो सिंस व्हेन दिस थिंग इज बीन स्टार्टेड ऑन। उस पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए फिर आपने इसकी फंडोस्कोपी करनी है, आपने इसकी ईसीजी करनी है, आपने एक्सरे करना है, वो देन द थिंग्स कम। So there are patients who are asymptomatic hypertensive, there are patients who are asymptomatic diabetic. जरूरी नहीं सबको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और सारा वेट लॉस सारा कुछ हो रहा हो। चलो आई थिंक वी ऑलरेडी गेटिंग लेट। समझ गई डॉक्टर। एंड ये आपके डॉक्टर लिए तो बस अब मैंने वो आपने किताबें करनी है बंद, आपने जाना है अपने वार्ड में, आपने हर एक चीज को डिस्कस करना है अपने सीनियर के साथ। That is the only जी way better in which you can pass your examination. If you again go back to your books, एग्जैक्टली डॉक्टर, तो मैं I don't think so कि that will be नहीं, मैं बात को जी एग्री कर रही हूँ डॉक्टर। देखिए ना, मैं इस पेशेंट को, अगर ये करंटली ऐसा पेशेंट है तो वैसे इस पेशेंट को टर्मिनेट, अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह रहा है, आईयूजी आ रहा है, तो मैं इसको 37 वीक्स तक लेके जाऊंगी ना, 37 वीक्स पे टर्मिनेट करूंगी। नो, इसकी आपका ग्रोथ स्कैन के हिसाब से, लाइकर के हिसाब से, बायोलॉजिकल के हिसाब से, ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड के हिसाब से, प्रोटीन यूरिया के हिसाब से, ये सारे पैरामीटर्स विल डिटरमिन हाउ फार वी कैन टेक दिस प्रेगनेंसी। इट इज नॉट अ वन फैक्टर थिंग। तो अगर इन सुबह सब शुगर डे टू डे इवैल्यूएशन के बाद, हाँ अगर सब कुछ नॉर्मल चलता जाता है, ग्रोथ उसकी ठीक हुई जा रही है, लाइकर उसका ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट टू 37 वीक्स। ओके, प्रोटीन यूरिया इसका बढ़ रहा है, लाइकर इसका कम हो रहा है, और थोड़े से उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट वेट कि ये फुल फ्लोन इक्लेम्शिया होगा तो फिर आप इंटरवीन करो। तो आपने इसमें मुझे बोला कि प्रोटीन +2 है और 140/90 का ब्लड प्रेशर है, तो फिर आई विल गो फॉर, फिर मैं उसको इमीडिएटली से, आपने बोला कि डॉपलर देखूंगी मैं। उसके सब चीजें इवेल्युएट अगेन होंगी, फिर आप डिसाइड करोगे। अगर उसको 24 आवर यूनिट प्रोटीन करने की जरूरत पड़ती है, पेशेंट स्टेबल है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इट ऑल कम्स टू द पैरामीटर्स व्हिच यू कम इन। आपने इसका टेबल बनाने के लिए, ये आज की ये रिपोर्ट थी, कल किसका प्रोटीन ये इतना हो गया, एलएफटी इसके पहले थे, प्लेटलेट्स लेते थे अब इतने हो गए, ये सब चीजें देखने के बाद देन वी स्टार्ट मूविंग ऑन। एंड ऑफ कोर्स शी इज द केस ऑफ, अभी हमने इसकी बात ही नहीं की प्रीवियर की कि हमने ब्लड अरेंज कर रखने हैं, हीमोग्लोबिन उसकी 9 है, वो अभी चली जाती है, सेक्शन करते हो पीपीआई में जाती है, एंड देन द पेशेंट वी डोंट हैव ब्लड वी डाई। जी डॉक्टर, वहां तक तो मैं डॉपलर भूल गई थी। बहुत कुछ भूली है बेटा, इट्स नॉट ओनली दैट। यस डॉक्टर, सही डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मुश्किल एग्जाम का केस लगा था ये, मैं तो वहीं फंस गई थी। बेटा ये चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जी पर उसको ऑर्गेनाइज करना तो हमारे हाथ में होता है। जी डॉक्टर, मैंने बोला था कि मैं भी चलो ब्लड का ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके जी जनाब।